Right, बच्चे लोग. So the exercise that we are starting today in trigonometry 8.3, that is one of the most important exercises बच्चे लोग. And इसमें से one question तो definitely it is going to come. थोड़ा सा शुरू में बहुत इजी लगेगा, लास्ट में थोड़ा सा आते आते टफ लगेगा, बट डोंट वरी, keep it in mind that we are going to do this exercise twice. So we'll be covering this twice so that this is very good with you people and you can think on it on your own. ठीक है? So be patient. अच्छे से करना है, स्लो मोड में करेंगे, because this exercise is one of the most important thing in the complete chapter. Right, beta ji? So moving to the shared screen now. This is my screen visible to everyone? Shared screen visible to everyone? Is this clear? Big enough? Janisha का अभी तक माइक ही कनेक्ट नहीं है. कोई बात नहीं, हो जाएगा क्लास के एंड तक तो. चलो बेटा जी, 8.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं. बिफोर वी स्टार्ट विद 8.3 एक्सरसाइज, लेट मी टेल यू 3 आइडेंटिटीज. जैसे आपने एलजेब्रा की आइडेंटिटीज की, a प्लस बी होल स्क्वायर, a square plus b square plus 2ab. Likewise, there are 3 identities for trigonometry as well. Pen down these identities, beta ji. Sin square theta plus cos square theta is 1. Right, bacha? Sin square theta plus cos square theta is 1. Next one. Written. Cosec square theta is equals to 1 plus cot square theta. Ma'am, you have to leave space between. Yeah. Yes. Like I'm willingly doing this. नेक्स्ट वन. कोई बात नहीं, अगर साथ लिख भी लिया मिष्टी, मैंने इंस्ट्रक्शन इसीलिए नहीं दी. आई नो कि वो इधर उधर भी लिखेंगे कहीं तो चलेगा. आई वांटेड टू प्रेजेंट इट नाइसली ऑन माय स्क्रीन, तो इसीलिए मैंने गैप छोड़ा. नेक्स्ट वन इज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. राइट बच्चे? रिटन एवरीवन? Written? Okay. Now if from here I want to draw one conclusion, I want to bring this cos square to the right hand side. So that will be sin square theta equals to 1 minus cos square theta, right or not, bache? So if you ask me sin square ka value is it 1 minus cos square theta, I'll say yes. Right? True. है ना? If I ask you cos square theta ka value, I want to present it in the form of sin square. Can I write that as 1 minus sin square theta? Any problem here? है ना? Right. This ways you can write cosec square theta minus cot square theta equals to 1. Right? Or you can also write cot square theta is equals to cosec square theta -1. अभी आप ये पिंक वाला जो अब मैं लिख रही हूँ ना सेकेंड में, ये आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट क्लियर टू यू दैट साइन स्क्वायर थीटा इज ऑब्वियसली 1 minus sin square, 1 minus cos square theta, and cos square theta is very obvious if you take it 1 minus sin square theta. Anywhere if you want to change cos into sin, it's very easy. Instead of sin square theta, write 1 minus cos square theta. है ना? There you have cos square. Then keep it in mind that sine square theta is 1 minus cos square theta. It is not sine theta equals to 1 minus cos theta. Okay? Clear now? Likewise, from here also you can transpose things and use the ओ different मैम ये पूछा identities था, मैम at यही पूछा different. था. Sec square theta minus tan square theta is what? That is 1. 1. So that's the identity. Okay? Clear, bacha? Should I move ahead? Written all these 3 identities? Okay, pen it down. You want me to pause?
Right. So now we are starting up with the exercise very quickly. Now in question number 1, they are asking you to express the trigonometric ratios sine A, sec A and tan A in terms of cot A. So let me pen down first of all 6 ratios that we knew. कौन सा वाला? Sin A, cos A, tan A. I call these 3 as my primary ratios. It is nowhere written, but I call them primary ones. They are the most basic ones. है ना? We learned these 3 first, no? And then the secondary ones are inverse of sine was cosec. Inverse of cos was sec A. Oh, sec. Cot का inverse is Tan. cot A. Who said tan? मैम आपने बोला था कॉट का रिवर्स. Oh, my bad. Yeah. राइट tan A का इनवर्स इज cot A, cos का इनवर्स मतलब मैंने लिखा करेक्ट पर मैंने बोला गलत है ना, कुछ ऐसा ही ना. वॉट समझदार को इशारा काफी होता है, तो समझदार बच्चे समझ गए होंगे. कौन कौन नहीं समझा? कोई नहीं बोलेगा नहीं समझा, क्योंकि अब तो समझदारी स्टेक पे है ना. गुड वन. चलो अभी क्या है यहाँ पर, दे आर आस्किंग यू टू रिप्रेजेंट एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ cot A. साइन ए को भी कॉट ए की तरह लिखना है, कॉस को भी कॉट की तरह लिखना है, टैन को भी कॉट की फॉर्म में लिखना है. कैसा लिखना है? दोज 3 आइडेंटिटीज विल हेल्प अस. सो आइडेंटिटीज को भी साइड में लिख लेते हैं. साइन स्क्वायर थीटा ही यूज कर रही हूँ मैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. देन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec square theta. 1 plus tan square theta is sec square theta. मामी राइट याद बच्चा? कैसे होगा इतना सारा? मैं वो ही बताने लगी थी साची बेटा कि ये याद कैसे होगा. मेरी मेमोरी ट्रिक क्या थी? ये दोनों क्या थे? ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स है ना. और ये दोनों साइन और सेक, मतलब ये कोसेक जो है वो साइन का इनवर्स है और सेक जो है वो कॉस का इनवर्स है. और साइन और कॉस तो आपस में रिलेटेड है ना. कौन सी आइडेंटिटी से? फर्स्ट आइडेंटिटी से. राइट. तो याद करने के लिए ये दोनों इनवर्स एक ही साइड पे लिखने हैं. 1 प्लस, मैं अभी भी लिखते हुए ये बोलती हूँ खुद को कि कॉट के नीचे टैन ही लिखना है. तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए. और दूसरी तरफ कैसे याद किया हुआ है? ये सी और सी साथ में आते हैं भाई. ठीक है. तो मैं आज भी खुद को ऐसे ही याद कराती हूँ, क्योंकि कई बार भूल जाते हैं ना, जब दोबारा नया चैप्टर शुरू कर रहे होते हैं तो भूल जाते हैं कई बार. तो ऐसे ही याद करते हैं उसको कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए. ठीक है बच्चा, क्लियर है? अब याद हो जाएगा. कुछ भी स्टोरी को कर लेते हैं, याद हो जाता है. ओके. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सबसे पहले मैं साइन को कॉट की फॉर्म में लिखूं, या मैं ऐसे करती हूँ. सबसे पहले मोस्ट इजी वन करती हूँ. कॉट तो कॉट की फॉर्म में है ही, इसको तो छोड़ दो. तो आपको 5 रेशियोज को कॉट की फॉर्म में चेंज करना होता है. वैसे तो यहाँ क्वेश्चन में आपको सिर्फ 3 को चेंज करने को कहा है, साइन सेक और टैन. सबसे पहले सबसे इजी वाला कर लेते हैं, टैन ए. टैन ए तो इनवर्स होता है ना कॉट का, तो 1 बाय कॉट ए. लो, टैन का वैल्यू आ गया इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए. टैन का आंसर इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए इज 1 बाय कॉट ए. सिंपल. So that itself is the answer. Done. Now let us go for sine A. I want to change sine A to cot A. Hello everyone, eyes on screen. Drop your pens. Listen. So what am I trying to do here is, in these kind of questions, you need to make a bridge between whatever you are trying to change and into what. Cot में change करना है, where is cot? या cot सोचो या उसका inverse tan सोचो. तो साइन को कॉट में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं? यू नो साइन का इनवर्स इज कोसेक, राइट. और कोसेक में साइन यहाँ पे चेंज करके कॉट बना सकते हैं ना. फिर से समझो, मैं इस बार ये वाला आइडेंटिटी यूज करने वाली हूँ. आई हैव चोजन दिस. वाई? क्योंकि यहाँ पर साइन का इनवर्स भी है और कॉट भी है. मुझे साइन को कॉट में चेंज करना था, इसीलिए मैंने वो आइडेंटिटी पिक की जिसमें साइन का इनवर्स भी हो और कॉट भी हो. हम ठीक तो है. cosec -1 होगा ना? अभी रुको ना बेटू, अभी रुको. दिस इज cosec स्क्वायर थीटा.
ठीक है, हो गया। नाउ मुझे कॉट की फॉर्म में लिखना है और मुझे पहले कोसेक को चेंज कर देती हूँ साइन में। सो दैट विल बी 1/sin² θ इक्वल्स टू 1 + cot² θ बच्चे। Now if I flip this side, I have to flip this as well. अपसाइड डाउन टर्न कर रही हूँ, दोनों का रेसिप्रोकल। सो दैट विल बी sin² θ as a numerator now will be equal to 1/1 + cot² θ. Is this clear or not? है ना? पर वैल्यू तो sin θ का चाहिए था, sin² θ का नहीं चाहिए था, तो इस पूरे को अंडर रूट कर दो। स्क्रीन लास्ट तक सबको विजिबल है ना? अभी what is the value of √1? Sin θ is equals to √1 is 1 and under the √1 + cot² θ. That's the final answer for sin θ. Simple? Ma'am, could you explain it once more? Yes, ma'am. I will, definitely I will. Ma'am, थोड़ा बोलो अर्नव, क्या कह complicated रहे है। हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत समझ इजी नहीं है। आया एक मैम। बार और समझाऊंगी, एक बार और समझाऊंगी, क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी बेटा, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको बहुत अच्छा टाइम देने वाली हूँ। तो बस पेशेंस के साथ बने रहो साथ में। किसी ने भी नहीं सोचना कि ट्रिगो टफ है। ओके, मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे साइन ए को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए। तो आउट ऑफ दोस 3 आइडेंटिटीज में सबसे पहले तीनों आइडेंटिटीज मेरे सामने लिखती हूँ जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है। अब मुझे ये देखना है कि मुझे ब्रिज किसके बीच में, कौन सा आइडेंटिटी यूज करना चाहिए, कौन सा ब्रिज विल हेल्प मी टेक मी टू द आंसर। तो साइन नहीं तो साइन का इनवर्स देखा, और कॉट दोनों एक इस आइडेंटिटी में मिल गए, इसीलिए आई एम यूजिंग दिस आइडेंटिटी टू सॉल्व दिस पार्ट। cot² θ इज इक्वल्स टू cosec² θ। राइट बच्चा, है ना? नाउ आई विल चेंज दिस cosec² θ इनटू 1/sin² θ, क्योंकि cosec is inverse of sine, right? We know this, है ना? That cosec is inverse of sine. Now I am in writing this 1 + cot² θ here. Now I want to flip this side to bring my sin² on the top. So I'll flip the other side as well. Sin² θ by 1 equals to 1/1 + cot² θ. Right, bacha? I flip both the sides. Now sin² θ is this. So if I want to find sin θ, this square on the other side will become square root. Right, bacha? Is this thing clear or not, everyone? Now under √1 is 1 only. And under √1 + cot² θ cannot be solved further. So this is your answer for sin θ. Clear or not, everyone? Is there any doubt till here? Should I move on? Can we write it down? Or- Okay, go ahead. I'm pause recording for some time so that you people can write. Chalo, let's see. For sec, if you want to go for sec, but sec को cot की फॉर्म में करना है। sec और cot की तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट मिष्टी हैज गॉट इट राइट। थर्ड आइडेंटिटी यूज करेंगे। वाई? क्योंकि tan को cot की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सो 1/1 + tan² θ is equals to sec² θ is the identity chosen here. 1 + 1/cot² θ. See, we have both the things now. और अभी तो कितना इजी हो गया, इसको पहले एक बार एलसीएम निकाल लो, थोड़ा सिंप्लीफाई। cot² θ, that is cot² θ + 1 equals to sec² θ, and sec² θ, sec θ now, sec θ के लिए it will be
under the root cot square theta plus 1 by cot square theta. अभी इसमें से denominator can be solved further, numerator you cannot solve. So cot square theta plus 1 by cot theta is equals to sec theta. That's the final answer. मैम इसमें एक और कॉट कहाँ से आ गया? बेटू एलसीएम लिया बच्चा मैंने, यस मैम। 1 और cot square theta का एलसीएम ले लिया बेटा और फिर क्रॉस कर दिया. Clear or not everyone? अर्नब अभी समझ में आया? मैम अब ऐसे ही समझ होगा. आ गया. Giving you the writing time, quickly pen it down. चलो आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं. नाउ दे आर टेलिंग यू टू चेंज ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ सेक. राइट, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मींस साइन को भी चेंज करो, कॉस को भी चेंज करो, टैन को भी चेंज करो, ऑल 3 प्राइमरी वंस. देन सेक तो सेक ही है ऑलरेडी, इसको थोड़ी चेंज करना है. एंड देन कोसेक को भी चेंज करो, एंड देन कॉट को भी चेंज करो. है ना, मैंने ये उल्टे ऑर्डर में लिख दिया उनके इनवर्सेस सामने, बट ठीक है. तो आपको बाकी 5 रेशियोज को सेक की फॉर्म में चेंज करना है. तो सबसे पहले सबसे इजी वाला कर ले. कौन सा होगा सबसे इजी इस बार? Sec. मैम tan मैम. मैम मैम Cos. tan मैम. उसका इनवर्स होगा Cos. कॉस वाला. कॉस थीटा इज 1 बाय सेक थीटा. लो हो गया चेंज, तो हो गया कॉस थीटा. डन. नेक्स्ट मैम करें. ये क्या हो गया मैम? ये कैसे हुआ? क्या क्या हो, यही तो कह रही हूँ. अगर याद नहीं है कौन किसका रेसिप्रोकल है तो याद करो, नहीं तो मुश्किल लगेगा. कॉस सेक रेसिप्रोकल्स हैं दोनों, यस मैम. है ना. अगर ये b बाय एच है तो ये h मैम, बाय b बिल्कुल है ये। बेटा. मैम मुझे लगा tan आइडेंटिटी कौन सी लगी है मैम ये? अभी तो कोई आइडेंटिटी नहीं लगी. मुझे पता है कि सेक और कॉस रेसिप्रोकल्स हैं, अच्छा अच्छा तो अच्छा मैंने अच्छा. कॉस को 1 बाय सेक ओ कर ये, दिया. ओ सिंपल, यस मैम. कोई आइडेंटिटी नहीं है यहाँ पे. तो क्लियर. नेक्स्ट करें. कौन सा वाला पिक कर रहे हैं? अब चलो साइन पिक कर रहे हैं. तो मैम अब sin. मुझे साइन और सेक, साइन और सेक कौन सा वाला आइडेंटिटी यूज होना चाहिए? साइन मैम और फर्स्ट सेक. आइडेंटिटी. मैम फर्स्ट. फर्स्ट आइडेंटिटी, बिंगो, राइट. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. वाई? क्योंकि कोई बात नहीं, अगर साइन और सेक की कोई आइडेंटिटी नहीं है, सेक के इनवर्स की तो है ना, सेक के रेसिप्रोकल की तो है ना, उसी को यूज कर लेंगे. सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा is equals to 1. Right or not? Now sine square theta is equals to 1 minus 1 by sec square theta beta ji. Now sine square theta मैं रेसिप्रोकल ले रही हूँ, ओ सॉरी एलसीएम ले रही हूँ sec square theta को और फिर क्रॉस कर रही हूँ. So sec square theta minus 1. Now sin theta की value will be under the root sec square theta minus 1 by sec square theta. Right or not? So sin theta will be equal to under the root sec square theta minus 1 by sec theta. Denominator का under the root solve कर दिया. Next one, no, sin I have changed in the form of sec theta and cos I have changed. Now time to change tan theta into sec theta. Which identity should we use? tan equals to sec plus 1. नहीं, Ma'am, जेनिशा will tell me. जेनिशा, you tell me. अच्छा चलो, अब तो दीदी ने बता दिया. But जेनिशा, you tell me, is this correctly done here? Should I move on like this? Tan theta equals to sec square theta minus 1. Is this correct or not? Like this ways, can I get the value of tan theta in terms of sec theta?
Ma'am, yes, you can. Very I'm good. accepting it. Now tan theta is equals to under the root sec square theta minus 1. That's it. That is the answer. Whenever sec theta का value is given to you, okay, sec theta is 3/4. So tan theta का value बताओ, तो you will do under the root 3/4 का square minus 1. In JEE you will use this. I'm not asking you to use it here. Okay. So tan theta is equals to under the root sec square theta minus 1. Right? So third also done. Primary one's done. Now next is cot square theta changing into sec square theta. Janisha, you tell me which identity should I pick up here? I want to change cot square theta into sec square theta now. Sec Ma'am, the theta third- now. Ma'am, the third Cot identity. theta into sec theta. Ma'am, is it possible to use a third identity? Exactly right. So 1 plus tan square theta is equals to sec square theta, बच्चे. है Ma'am, ना? why are you Now- taking this identity? Because tan का inverse कर दो ना बेटा. Oh, अच्छा. हाँ, okay, yes, okay. ma'am. Yes. सबके दिमाग में यही आया, सब ऐसे ही कर रहे हैं, but there is a shortcut to it. So let us watch on the shortcut here. क्या shortcut हो सकता है? tan theta का मैम value tan मिल गया, थीटा की वैल्यू यस मैम उसको तो flip सब्स्टिट्यूट कर कर दो. दो You know tan theta का inverse is cot theta. No, if you know tan theta का value, तो cot theta का value will be obviously 1 by under the root sec square theta minus 1. Ma'am, but if we are Simple. told to solve it, we have to you mean put No, all you the are not things. told to. They are only Yes, ma'am. asking Okay. you to represent it in that format. And Okay. this is very much accepted. Okay. Yes, ma'am. आइडेंटिटी को पकड़ सकते हैं, ऑफ कोर्स पकड़ सकते हैं, और पकड़ भी लिया एग्जाम में तो इट वोंट बी इनकरेक्ट बेटा. ओके, इट वोंट बी इनकरेक्ट. Ma'am, I लेकिन prefer this. अगर ये क्लिक कर गया तो यू विल सेव टाइम. Yes. मैम ओके, आप वो आइडेंटिटी के साथ सॉल्व करके दिखाएंगे क्या? बिकॉज मेरा हो नहीं रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? चलो करें इसको सॉल्व. पता नहीं मैम. मैम आंसर देखो में बस सेक 1 नहीं आ रहा, प्लस कॉर्ड नहीं आ रहा. कोई बात नहीं. आई विल शो यू. दिस इज sec square theta. So this is 1 plus 1 by cot square theta is equals to so this is like this. And now what will we do? Take cot square theta LCM. Cot square theta plus 1 equals to sec square theta beta g. And then under the root cot square theta plus 1 by under the root cot square theta equals to sec square theta, sec theta now. Equals to sec theta now. मैं बहुत स्क्रिबलिंग करके लिख रही हूँ ना, गंदा गंदा सा. आप लोग अपनी नोटबुक में प्लीज साफ लिखना. ओके. सो स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया देन? cot square theta plus 1 by cot theta is equals to sec theta. यस मैम. अरे यार पता है व्हाट डिड आई डू? अरे यार मुझे तो कॉट को सेक के फॉर्म में चेंज करना था, मैंने सेक को कॉट का फॉर्म में चेंज कर दिया. Ma'am, आई गॉट exactly. डिस्ट्रैक्टेड मैम है. इसीलिए मेरा नहीं हो रहा था. यस आई गॉट. अच्छा मैत्री भी यही कर रही है? नहीं नहीं मैम, नहीं मैं बेटू वो उसको सॉल्व करना कर रही था. थी, बट उसके बाद फिर आपने ये कर दिया तो मैंने पूरा कट कर दिया. एक्सक्यूज मी मैम. नहीं ऐसा करते हैं, देखो 1 by cot square theta is equals to यस sec मैम, मैं भी square वही कर theta रहा हूँ minus. मैम. एक्चुअली क्या हुआ, मेरे हाथ ने क्वेश्चन सॉल्व किया, मेरे माइंड ने सोचा ही नहीं. तो दिस इज नाउ अभी फ्लिपिंग दिस अपसाइड डाउन both the sides. So cot square theta is equals to 1 by sec square theta minus 1. Now cot theta will be equals to 1 का अंडर रूट तो 1 ही होएगा ना. sec square theta minus 1 under the root. वही तो है आंसर, सेम ही तो है जो पहले निकाला था. Yes, ma'am. इसका इनवर्स है ना, तो आंसर वैसे ही आना चाहिए बच्चे, सेम वॉट एवर मेथड यू ऑप्ट फॉर. ठीक है बच्चा. तो कॉट भी चेंज हो गया. लास्ट वन इज कोसेक स्क्वायर थीटा. आप कोसेक स्क्वायर थीटा को चेंज करें
अब मुझे कौन बताएगा कि ये क्या आइडेंटिटी है? मुझे ये मैम सेकंड वाली, तिथि बताएगी, तिथि बताएगी। मैम सेकंड वाली तिथि, मैम। अर्नव का नाम आज से तिथि रख देते हैं, ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम। मैम हाँ जी। गलत बात है ये मैम। ये गलत बात है कि तेरा आंसर देना गलत बात थी। मुझे चेक करना था दीदी को समझ में आया कि नहीं आया। कोई नहीं मैम, फर्स्ट दीदी, आंसर है मैम। दीदी, दीदी यस समझ मैम। सकती है बच्चा कि मेरे को यस चेंज किसको करना है? कोसेक को मुझे चेंज करना है बेटा। सेक की फॉर्मेट में कौन सा आइडेंटिटी पिक करूंगी? मैम। एक मिनट ही है बेटा। सेक की तिथि, फॉर्मेट मैम। सेकंड। कैसे? सेकेंड आइडेंटिटी के अंदर तो, सेकेंड आइडेंटिटी में कोसेक तो दिख रहा है, सेक किधर दिख रहा है? सेक तो कॉट का इनवर्स भी नहीं होता। या तो वो दिखना चाहिए या उसका इनवर्स दिखना चाहिए। मैं बताऊं एक आइडेंटिटी, यस मैम। फर्स्ट आइडेंटिटी, इसमें कोसेक का इनवर्स भी है, इसमें कॉस का इनवर्स भी है यस मैम। है ना? अच्छा, यस एक और आसान काम हो सकता है। वाई डूइंग दिस? मैम उल्टा मैम कर जैसे मैम के लिए किसको उल्टा कर दो? मैम किसको साइन उल्टा कर दो? साइन। साइन को उल्टा कर दो। उल्टा कर राइट। तो साइन का वैल्यू क्या आया? जो भी आया उसको रेसिप्रोकल कर दो प्लीज। sec square theta minus 1 upon sec square in root. ये ऐसा होगा बेटा, है ना? तो इसको बस रेसिप्रोकल करो, आपका आंसर आ गया। हाँ, ठीक मेरे है को समझ नहीं आया। साची बच्चा, मैं ये कह रही हूँ कि क्यों मेहनत करनी है दोबारा से उसको फाइंड करने की। अगर आपके पास साइन थीटा का वैल्यू क्या लिखा नोटबुक में, पढ़ के बताओ साची। साची, नोटबुक में पढ़ के बताओ। सेक थीटा को सेक, साइन थीटा को सेक की फॉर्म में कैसा रिप्रेजेंट किया? हाँ, मैंने किया ही नहीं। फर्स्ट पार्ट था जो मैंने सॉल्व करवाया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने साइन ही सॉल्व करवाया था। अच्छा। नहीं, सेक के बाद पहले कॉस करवाया था, फिर साइन करवाया था। यस मैम। मैम है मैम। सेक बोलो। स्क्वायर बीटा माइनस सेक 1। स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय सेक यस मैम, सेक बीटा। सेक थीटा, यस राइट? यस। तो अभी आपको कोसेक का वैल्यू चाहिए। कोसेक इज इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ साइन, नो? फ्लिप मार दो दोनों को, इसको भी और उसको भी। साइन को फ्लिप मारते ही कोसेक थीटा आ जाएगा, मैम आप और इसको आइडेंटिटी फ्लिप, यूज करके बता सकते हो, उनको कंफ्यूजन हो रहा है। एग्जाम में भी नहीं करना है वो यूज, टाइम से भी टेक्निक डेवलप करेंगे। जब प्राइमरी वंस निकाल दिए, साइन कॉस टैन, बाकी सब उनके रेसिप्रोकल से सॉल्व करो बेटा। व्हाई आर वी सॉल्विंग प्राइमरी वंस फर्स्ट? ताकि टाइम सेव हो सके, बाकी सब में फ्लिप करो उन्हें। मैम कोसेक स्क्वायर से हो गया। क्या मैम you बच्चा? gave the answer. Ma'am, you asked me to represent all trigonometric ratios in the form of cosec square root. Ma'am, that. cosec theta, cosec theta. So you मैम did that? आपने मैम cosec स्क्वायर कर दिया मैम। आपने cosec स्क्वायर लिखा था। That doesn't matter, वो cosec में वैसे ही आएगा। अभी भी मैं अगर सेक में चेंज करने को कह रही हूँ तो मोस्टली उस जगह वो स्क्वायर ही है, कहीं कहीं वो उसके फॉर्मेट में होगा, दैट वोंट मैटर। ठीक है, राइट मैम। ओके, गुड। देन सो हो गया। गुड गुड गुड। सो अभी ये क्लियर हुआ, लास्ट वन भी हो गया, cosec कैसे चेंज करना है। अगर आपको प्राइमरी वंस आप चेंज कर चुके हो बेटा, सेकेंडरी वंस के लिए डोंट यूज द आइडेंटिटी थिंग अगेन, दैट विल वेस्ट योर टाइम इन एग्जाम। उन्हें सिर्फ फ्लिप करो, ओके? चलें अभी आगे। अच्छा, पता है एक और आसान तरीका था, टैन को भी कर सकते थे साइन बाय कॉस, पर चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, जो जितना क्लिक करेगा ना उतना ही यूज करो उसको। अभी नेक्स्ट वन, जब हम सेकंड बार करेंगे तो मैं इन्हें दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखा दूंगी कि जिसको जो एग्जाम में क्लिक करता है वो यूज कर सकता है। हाँ जी बेटू बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट।
क्या अर्नव बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या था? ये आंसर्स थे। साइन थीटा इज इक्वल्स टू जो वैल्यू निकाली, कॉस थीटा जो निकाली, टैन थीटा जो वैल्यू निकाली, ये सब बॉक्स में ही डालना है, ये सब आंसर्स ही थे। उसमें कोई ऑप्शन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई ऑप्शन नहीं था बेटा। वो राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन फॉर्म ऑफ सेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 में है ऑप्शंस, उसको करेंगे सॉल्व अभी। ठीक है, पढ़ जाओ आगे। ओके, नाउ दैट इज 9 सेक स्क्वायर। अच्छा पता है क्या है, मैं क्या करती थी एग्जाम में, मुझे ना थीटा थीटा बोलना और लिखना बहुत फास्ट लगता है, तो मैं तो शुरू में ही ए इज इक्वल्स टू थीटा लिख देती थी और मैं मेरे फ्लो से चलती थी, थीटा थीटा। लाइकवाइज आई विल राइट एवरीवेयर थीटा थीटा। आप लोगों को नहीं यूज करना है तो ए यूज कर देना। मुझे ऐसा लगता है मेरी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है व्हेन आई डोंट यूज थीटा। आई फील मोर कंफर्टेबल विद थीटा, तो मैं तो सब जगह थीटा थीटा ही बोलने वाली हूँ। ओके, सो 9 sec square theta minus 9 tan square theta. This we need to solve and we are not going to look on the options अभी. So सबसे पहले क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले 9 कॉमन निकाल सकते हैं, sec square theta minus tan square theta. आइडेंटिटी थी 1 plus tan square theta equals to sec square theta. राइट और नॉट? तो sec में से ट्रांसपोज करके tan सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर क्या आ रहा है बेटा? 1. 1. Clear or not? So 9 times sec square theta minus tan square theta is 1. और आप बॉक्स में ये आइडेंटिटी लिखेंगे every time you are solving a question. Okay. So 9 times 1 is 9. Answer is 9. Where is the option? That is B. Okay, everyone or not? Clear? Want writing time? Okay, take it. राइट बेटा जी, तो अब हम क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिस वन 1 plus tan theta plus sec theta टाइम्स 1 plus cot theta minus cosec theta। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलते हैं। सो 1 plus tan theta plus sec theta 1 plus cot theta minus cosec theta। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब भी क्वेश्चन ऐसा लगे कि टफ है और सॉल्व नहीं हो रहा है, the best technique is to change each and every trigonometric ratio into sine and cos. When you change them into the most basic thing sine and cos, तब वो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो हम यहाँ पर वही करने वाले हैं, सबको साइन और कॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। सो 1 plus tan theta कैन बी रिटन एज sin theta by cos theta बेटा जी, है ना? यही बताया है शुरू से, डे 1 से। sin theta cos theta को डिवाइड करो, यू विल गेट tan theta। sec theta कैन बी रिटन एज 1 by cos theta, कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट वन 1 plus cot theta। पूर्वी सुनो सब लोग, देखो मत लिखो बच्चा, समझो। राइटिंग टाइम दे तो रही हूँ और इससे ज्यादा स्पीड स्लो क्या करके पढ़ाऊंगी? यहाँ नहीं देखोगे, आधी चीज समझ में आएगी, आधी नहीं आएगी बेटा। स्क्रीन पे फोकस करो। cot theta कैन बी रिटन एज cos theta by sin theta, क्योंकि ये tan का इनवर्स होता है। sin by cos tan हुआ तो cos by sin cot हो गया, माइनस cosec किसका इनवर्स होता है? sin थीटा का। कोई प्रॉब्लम अभी तक? अब ऐसे लग रहा है कि फर्स्ट ब्रैकेट में cos थीटा को एलसीएम ले सकते हैं, सेकंड ब्रैकेट में sin को। तो चलो जो कर सकते हैं वो कर देते हैं। एलसीएम ले लिया cos थीटा, अब cos थीटा इंटू 1 cos थीटा यहाँ पे लिखेंगे। रेस्ट दोनों का डिनोमिनेटर इज सेम एज एलसीएम। जब भी डिनोमिनेटर एलसीएम जैसा होता है, न्यूमरेटर्स ऐसे ही कॉपी कर देते हैं, sin थीटा प्लस 1 ये ब्रैकेट में, और इधर ब्रैकेट में sin थीटा को एलसीएम लेना है, तो sin थीटा, इसको 1 को sin थीटा बनाने के लिए sin थीटा टाइम्स 1 sin थीटा ही हो जाएगा। और अभी डिनोमिनेटर्स एलसीएम जैसे हैं तो सेम न्यूमरेटर्स कॉपी कर दो। कोई प्रॉब्लम हुई अभी तक? हाँ, मेरे को डाउट है बोलो बच्चा। मैम, वो cot थीटा को cos थीटा और sin थीटा कैसे हुआ वो? बेटू देखो, tan थीटा की वैल्यू होती है sin बाय cos, राइट? और मैंने बोला tan का उल्टा cot होता है,
तो अगर tan का उल्टा cot किया तो इनका भी तो उल्टा लिखेंगे ना बच्चा, cos थीटा बाय sin थीटा। Ma'am, but why can't we use 1 by tan theta? Just 1 by tan theta. मैंने अभी बोला क्वेश्चन को सिंपलेस्ट बनाना है तो मोस्ट बेसिक वंस cos और sin में चेंज करो, cot में चेंज करके व्हाट गुड इज इट गोइंग टू डू विद यू, है ना? Okay. तो Yes. मोस्ट बेसिक वंस में चेंज करना है। ओके, नाउ अब दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में ये, तो sin थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई होकर लिख दिया, और न्यूमरेटर्स भी मल्टीप्लाई हो गए, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 एंड cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1। हम a square minus b square। क्या दिख रहा है यहाँ पे? वेरी गुड। क्या दिख रहा है यहाँ पे? आपको दिख रहा है ये सेम चीज +1, ये सेम चीज -1। तो फॉर्मूला याद आया, a प्लस बी ए माइनस बी वाला? क्या होता था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? मतलब इस ग्रीन ब्रैकेट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करना है। सो cos थीटा, दिस कलर इज नॉट गुड टू आईज, सो cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर बाय sin थीटा cos थीटा। कोई प्रॉब्लम हुई यहाँ पे अभी तक? ओके, अब आई नीड टू वेकेट सम एरिया टू वर्क नाउ। मैं कहाँ कर रही हूँ? मैं साइड में काम कर रही हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, एंड आई विल यूज वन फाइनर पेन हेयर। ओके बेटा जी, तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ बच्चे? देखो यहाँ पे मैं ये जो पार्ट है इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर पुट कर रही हूँ। सो दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा। क्यों लिखा? a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab होता है ना a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना बच्चे? तो वो यूज कर दिया और साथ में लिख दिया -1। वाई -1 लिख दिया साइड में? क्योंकि ये वाला पार्ट -1 पेंडिंग था अभी सॉल्व करना। नहीं समझ में आ रहा पूर्वी? नहीं आ रहा? चलो मैम कोई बात नहीं। इतना डिस्कम्फर्ट दिख रहा है फेस पे? नो मैम, बिकॉज मैं इफ आई एक्चुअली सॉल्व दिस मेरे मन में ये आइडेंटिटीज नहीं आती है। तो सामने लिख कर रख लो अपने पेज पर, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तीनों आइडेंटिटीज नोट डाउन कर लोगे, ठीक है? फिर दिखने लगेंगी और समझ में आने लगेंगी। एवरी टाइम यू आर स्टक, गो एंड टेक हेल्प। एवरी टाइम यू आर स्टक, गो एंड टेक हेल्प। ओके, सो अभी मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा बच्चे -1, राइट? ये मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपैंड किया है अपॉन साइन थीटा cos थीटा। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़कर आए हो उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की कोई आइडेंटिटी थी? हम फर्स्ट। मैम 1 इक्वल्स टू 1 था ना equals पूरा 1। वो, तो इस पूरे को रिमूव करके 1 लिख दो। 1 प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा -1 बाय साइन थीटा cos थीटा या cos थीटा साइन थीटा, ऑर्डर डजंट मैटर। अब ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहा? 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा, ये कैंसिल हो गया। आंसर इज 2। क्लियर और नॉट? आप धीरे धीरे ये फील करोगे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होते हैं, आप तो कुछ नहीं कर रहे। जो हो सकता है नेक्स्ट स्टेप में कर दो, जो हो सकता है नेक्स्ट स्टेप में कर दो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता जाएगा। राइट बच्चे? नोट कर लिया सबने ये? Ma'am, for an MCQ it is so big. कम अगेन बच्चा। Ma'am saying that it's too big for an MCQ. इट्स अ बिग टाइम व्हाट? Ma'am, I was saying that it's too big for an MCQ. हाँ हाँ, ऐसे ही है बेटा, ऐसे ही आएंगे एमसीक्यूज में तो।
So you people can take a screenshot of this if you have not written this, because I need to start with my next batch. It's already time. Okay, Yes, ma'am. taken. Yes, ma'am. Okay.